شیر خدا کی والدہ فرماتی ہیں جب حضرت علی پیدا ہوئے تو میرا بیٹا آنکھیں نہیں کھولتا تھا، ہم بڑے پریشان تھے کہ بچہ آنکھیں کیوں نہیں کھولتا۔ پھر حضور تشریف لے آئے، وہ سنا کے سخن دکھلا کے پھبن، مورا پھونک گئے سب تن من دھن۔ حضرت مولا علی شیر خدا آنکھیں نہیں کھول رہے، کریم تشریف لے آئے اور نبی پاک نے اپنے لعاب دہن سے مولا علی کو گھٹی دی۔ فرماتے ہیں جیسے ہی وہ لعاب دہن مولا علی کے منہ میں گیا، شیر خدا نے آنکھیں کھول لی اور پہلی زیارت مدینے والے محبوب کی فرمائی۔ اور پھر انہوں نے حضور کے کمالات کو دیکھا اپنی آنکھوں سے، اپنی نگاہوں سے نبی پاک کی شانوں کو، عظمتوں کو، بلندیوں کو ملاحظہ فرمایا۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور انہی لفظوں سے آپ کو ملے گی۔ آپ فرماتے ہیں حضور کے اعلان نبوت سے پہلے میں نبی پاک کے ساتھ مکہ مکرمہ کے گرد و نواح میں نکلا، حضور جس درخت کے پاس سے گزرتے اعلان نبوت سے پہلے، بات کو یاد رکھیے گا، حضور جس درخت کے پاس سے گزرتے، جس پتھر کے پاس سے گزرتے، وہی کہتا السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کمالات کو حضرت علی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، نبی پاک کا اخلاق دیکھا، کردار دیکھا، عظمت دیکھی، نبی پاک کو میدانوں میں دیکھا، جنگوں میں دیکھا، صحابہ کی محفلوں میں دیکھا، مسجدوں میں دیکھا، گھر کے اندر دیکھا، گھر والوں کے ساتھ محبت کرتے ربط رکھتے دیکھا۔ یہ سارا کچھ جس باریک نظری سے مولا علی نے دیکھا، کسی اور نے اس طرح نہیں دیکھا۔ جو انفرادیت ان کی ہے وہ انہی کی ہے، کیونکہ یہ گھر کے اندر بھی دیکھتے تھے۔ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں، ترمذی میں موجود ہے، فرماتے ہیں دنیا میں نے بھی بڑی دیکھی، پر نبی پاک جیسا نہ پہلے دیکھا نہ حضور کے بعد کوئی دیکھا۔ حضور کی کیفیات جیسا میں نے کوئی دیکھا ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا۔ شاید یہی وجہ ہے جب کسی نے حضرت علی سے پوچھا نا آپ کو حضور سے کتنا پیار ہے، تو حضرت علی نے فطرت انسانی کے عین مطابق بات کی۔ فرمانے لگے نبی پاک علیہ السلام ہمیں اتنے پیارے ہیں جتنا صحرا کا سفر ہو، گرمی کا موسم ہو، پیاس کی شدت ہو، پانی موجود نہ ہو۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال دیتے ہیں۔ ایک طبی تقاضا ہوتا ہے نا فطرت کا، وہ ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں اب تو خیر اللہ نے مہربانی کر دی، یہ سارے روزے ہی ٹھنڈے گزر گئے، ورنہ وہ کہا کرتے تھے گرمیوں کے روزے ہوتے تھے تو کہتے تھے میرا گلاس سے کچھ نہیں بنتا، جب میں روزہ کھولتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ پائپ منہ میں رکھوں اور پیچھے سے ٹوٹی چلا دوں، اتنی سخت پیاس لگتی ہے مجھے، اور میرا دل کرتا ہے کھانا پینا اور نہیں چاہیے، بس پانی چاہیے، طلب ہوتی ہے نا۔ یہ اسے اندازہ ہوتا ہے جسے پیاس۔ حضرت علی مثال دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک ہمیں ماں باپ سے بھی زیادہ پیارے ہیں، اولاد سے بھی زیادہ پیارے ہیں، بہن بھائیوں سے بھی زیادہ پیارے ہیں، مال سے بھی زیادہ پیارے ہیں، لیکن فرمایا جس طرح صحرا کا علاقہ ہو، گرمی کا موسم ہو، پیاس کی شدت ہو اور پانی نہ ملے تو پیدل سفر کرنے والے صحرا کے مسافر کو گرمی میں جتنا پانی سے پیار ہوتا ہے نا، مجھے اس سے بڑھ کر مدینے والے محبوب سے پیار ہے۔ یعنی اتنا بندہ سخت پیاسا ہو، اسے پوچھا جائے کہ پانی پینا ہے کہ زیارت کرنی ہے، اسے پوچھا جائے کہ تو نے پیاس بجھانی ہے کہ دیدار کرنا ہے، اگر وہ جواب میں کہے پانی نہیں چاہیے زیارت کرنی ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر اسے پیار ہے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں ہمیں گرمی اور صحرا کے موسم میں پانی سے بھی زیادہ مدینے والے محبوب سے محبت۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کہ بعض اوقات تو وہ وارفتگی بن گئی۔ ساری زندگی ہم نے یہی سنا ہے الامر فوق الادب، جب حکم مل جائے تو وہ ادب پر فوقیت رکھتا ہے، لیکن کچھ لوگ محبت کے ہاتھوں بے بس ہوتے۔ امیر آدمی ہے، مالدار ہے، اس کے ایک ٹیلی فون پہ سارے کام ہو جاتے ہیں، وفادار آدمی، ہر لحاظ سے جان پہچان رکھتا ہے، لیکن اس کا اپنا والد ہاسپٹل میں بیمار ہے اور ڈاکٹر آ کے اسے کہہ دے
बददुआ ही करें, हालात ठीक नहीं, तो सारी ताकतें भी हैं, पैसा भी है, सब कुछ है, तो फिर जब बंदा पूरा बेबस हो जाता है तो आंसू नहीं बहाता। तो ये जो फिर वो बेबस होके मुसल्ले पे बैठ के आंसू बहाता है, तो ये उसकी बाप से मोहब्बत होती है कि मेरे जो बस में था वो तो मैंने सारा कर डाला, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो रहा। मोहब्बत जब गलबा करती है तो फिर वो आंसू बन जाती। दरवेश ने कहा था ना, आंसू कुर्बत का सबब होते हैं। जब आपकी रूह किसी की रूह से मिलती है फिर आंसू निकला करते हैं, ये कुर्बत का सबब होते हैं। ये मोहब्बत पूरे ज़ौक़ पे आ जाए। हुदैबिया का ना मुआहदा लिखा जा रहा था, जरा ज्यादा गौर से सुनना मैं क्या कहने लगा। काफिरों के साथ नबी पाक का एक मुआहदा सुलह हुदैबिया तय हुआ, वो लिखना था, सुलह हो गई, तय हो गया, अब उसकी दस्तावेजात तैयार करनी थी, तहरीरी सूरत में लाना था, तो लिखने की ड्यूटी मौला अली की लगी। हजरत अली ने लिखा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश मक्का के दरमियान मुआहदा। अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुए थे, कलमा नहीं पढ़ते थे, बोल पड़े, और जो उनके बाकी नुमाइंदे थे वहां कुफार के, वो नुमाइंदे बोल पड़े सारे। वो कहने लगे, जी यही तो मसला है माज़अल्लाह, अगर हम मोहम्मद रसूलुल्लाह मान जाए तो झगड़ा ही क्या है। आप मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं लिखे, आप लिखे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला और कुरैश मक्का के दरमियान मुआहदा। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तबीयत सुलह जो दी है, महबूब है ही अमन वाले रसूल। हुजूर ने फरमाया, अली रसूलुल्लाह काट के ना मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला लिख दो, कोई हरज नहीं, लिखो, सुलह करनी आप। सारी जिंदगी शेर खुदा ने हुक्म माने और डाडे डाडे माने, मैदानों में माने और तलवारों के साये में माने, बर्छियां चल रही थी माने, तीर बरस रहे थे माने। हजरत अली ने हर हुक्म माना है और बसीरो चश्म माना है और दिलो रूह से माना है। लेकिन आज नबी करीम ने फरमाया, अली ये रसूलुल्लाह काट के मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला लिख दो। तो शेर खुदा ने कलम रखा, 2 कदम पीछे हटे, हाथ बांध लिए, वजूद कांपने लगा, कहने लगे, सोनिया नहीं काटा जाता मुझसे। तन तंदूर ते हड्डियां बालन, असी हावा नाल तपाया, कप कप मुकियां पेड़े कीते ते इश्क पले थल लाया। तन दा सालन मन दी हांडी, असलून सबर दा पाया। गुलाम फरीदा मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया। नहीं काटा जाता हुजूर, कुर्बान जाए। मैंने कहा, जब मोहब्बत उरूज पाती है तो आंसू बन जाती। जब मोहब्बत के हाथों लोग बेबस होते हैं तो फिर तड़प के रोते। नहीं काटा जाता हुजूर। नबी पाक ने ये नहीं फरमाया लिखा जाता है तो काटा क्यों नहीं जाता, ये नहीं फरमाया। हुजूर उस कल्बी कैफियत को जानते। या रसूलल्लाह नहीं काटा जाता, हुजूर ने फरमाया मुझे दे दो। नबी पाक ने खुद काट के मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला लिख दिया, मुझे दे दो। लेकिन हजरत मौला अली शेर खुदा की मोहब्बत नबी पाक के साथ, हजरत अली का प्यार रसूलुल्लाह के साथ, हजरत मौला अली शेर खुदा, पता नहीं ये हजरत अली का हुजूर से प्यार था कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है। ये मुस्तदरक में हदीस मौजूद है। हुजूर फरमाते, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं 4 लोगों से मोहब्बत करूं। अल्लाह ने मुझे कहा है। हुजूर फरमाते हैं, मुझे अल्लाह ने कहा है इन 4 से मोहब्बत करो, और अल्लाह ने यह भी कहा है मैं भी इनसे मोहब्बत करता हूं। मुझे भी कहा इनसे मोहब्बत करो, रब फरमाता है मैं भी इनसे मोहब्बत नहीं, हुक्मन कहा है। कुछ काम हुक्मन होते हैं ना, हुक्मन कहा है। ये हजरत अली की ना शान थोड़ी इनफिरादी है, हुक्मन कहा है। या रसूलल्लाह वो 4 कौन कौन है? तो नबी पाक ने फरमाया, एक अबू ज़र गिफारी, एक सलमान फारसी, एक हजरत मिकदाद और चौथे मौला अली शेर खुदा। अल्लाह ने हुक्मन का हुक्मन। और हुजूर फरमाते, जन्नत भी कुछ लोगों पर आशिक है, जन्नत भी कुछ लोगों की मुश्ताक है। यानी सारे जन्नत पर आशिक है, जन्नत में जाना चाहते हैं। जन्नत कुछ लोगों पर आशिक हो गई है।
जन्नत को शौक है, जल्दी जल्दी है। हुजूर कौन कौन? फरमाया सलमान फारसी, अम्मार इब्ने यासर और मेरा अली शेर खुदा। जन्नत आशिक हो गई है, जन्नत कहती है ये कब आएंगे। जन्नत को शौक है कि अली आ जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया। एक दफा ना, ये तिरमिजी में भी मौजूद है और मिशकात में भी मौजूद है, तर्जमा अपनी मर्जी के करते रहिएगा घर जाके। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बातों में बंद होती हैं, खोली जा नहीं सकती। चुप कर मेरे अली, इत्थे जा नहीं बोलन दी, हकीकतें आश्कार कर दे, सदाकतें बेहिजाब कर दे। हर एक जर्रा ये कह रहा है आ और मुझे आफताब कर दे, पर इकबाल कहते मजबूरी बड़ी है, बात खोल नहीं सकते। कैसा दस्तूर जुबां बनती है तेरी महफिल में कि बात करने को तरसती है जुबां मेरी। कैसे खोलूं? खोल सकता नहीं। क्यों? तो मियां साहब कहने लगे मैं दसना क्यों नहीं खोल सकते। ए खासा दी गल आमा आगे नहीं मुनासिब करनी, ये बनदी नहीं, ये खोली जा सकती, ये मजबूरी होती है। ये मिशकात में मौजूद है, ये तिरमिजी में मौजूद है। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रावी है, फरमाते ताइफ वाला दिन था, नबी पाक ने मौला अली को बुला लिया और बुलाकर देर तक हजरत अली से बातें करते रहे, सरगोशी करते रहे, राज नियाज की बातें। थोड़ी देर नहीं, देर तक। बाद में सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह आज आपने अपने भाई से बड़ी देर तक बातें की हैं। तो सुनना ये लफ्ज हदीस में मौजूद है। नबी पाक ने फरमाया मैंने नहीं सरगोशी की अली से, अल्लाह ने की है। मैंने नहीं की, अल्लाह ने की। खुदा खुद मीर मजलिस बूद अल्लाह ने की है। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी रहमतुल्लाह अलैह शरह मिशकात में लिखते, फरमाते दो मतलब है इस जुमले के। एक मतलब तो ये है कि मेरा बात करना रब का ही बात करना है, और दूसरा मतलब ये है मैंने खुद नहीं की, मुझे रब ने कहा है महबूब बुलाना अली को, जरा करना बातें उसके साथ। मैंने नहीं की, मुझे अल्लाह ने कहा है, हुक्म दिया है कि अली से तवील गुफ्तगू, तवील सरगोशियां, लंबी बातें हजरत मौला अली शेर खुदा के साथ नबी पाक की। अब ये जो हदीस है ना, ये आपने लिख के रख लेनी है पास, और कभी भूलनी नहीं। लिख लेंगे इंशाल्लाह। मैं तो अक्सर यही कहना याद रखे जी, पहले दिन आखिया लिख लिया जी, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया इल्म को लिख के कैद कर लो। ये हदीस भूलने वाली नहीं, और ये लिखनी भी है और बच्चों को याद भी करानी है। क्यों लिखनी है, क्यों याद रखनी है, क्यों बच्चों को याद करानी है? मसला ईमान का है, मसला ईमान का है, मसला ईकान का है, मसला अकीदे का है। तिरमिजी शरीफ में मौजूद है। हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं नबी पाक ने मुझे ताकीदी हुक्म दिया था। हुजूर ने फरमाया अली तुझसे सिर्फ वही प्यार करेगा जो मोमिन होगा, और फरमाया अली तेरे से बुग़्ज़ वही रखेगा जो मुनाफिक होगा। मुनाफिक प्यार कर नहीं सकता, उसकी मजबूरी है, और मोमिन अली को छोड़ नहीं सकता, उसकी भी मजबूरी है। दोनों मजबूर है अपनी अपनी जगह पे। हुजूर ने फरमाया अली से मोहब्बत कौन करेगा, बुग़्ज़ कौन रखेगा? दोनों की मजबूरी है। इसको आप देखें ना, परेशान बड़ा हो गया हजरत अली का जिक्र सुन के, तो समझ ले बंदे में मसला है। और जिसको आप समझे ना कि शेर खुदा की बात सुन के चेहरा खिल गया है, जरा तबीयत रोशन रोशन हुई है, जरा दिल ठंडा हो गया है, जरा इसके जिस्म के लू कंडे खड़े हुए हैं, अली अली करके इसके वजूद को ताकत मिली है, जिक्र अली ने इसकी तबीयत को ठंडा किया है। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज करके लौट रहे थे, गदीर खुम के मौके पर मौला अली का हाथ पकड़ा, इधर देखो मेरी तरफ। हुजूर ने हजरत अली का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के बुलंद किया, और फिर नजर डाली तमाम सहाबा के मजमे पर, फरमाया लोगों बताओ मैं तुम सब की जानों से ज्यादा तुम्हारे करीब नहीं? अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। लोगों ने कहा हुजूर आप हमारी जानों से ज्यादा करीब है। फिर दूसरी दफा फरमाया क्या मैं तुम सब की जानों से ज्यादा तुम्हारा मालिक नहीं, करीब नहीं? या रसूलल्लाह आप जानों से भी ज्यादा हमारे मालिक हैं। हाथ पकड़ा नबी पाक ने मौला अली का और फरमाया सुनो फिर मन कुन्तु मौलाहु,
फ़अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला फिर उसके अली भी मौला। हाथ फड़ के नबी ने आंखें हंसी, सुन लो यार, हाथ फड़ के नबी ने आंखें हंसी, मन कुंतु मौला नहीं भूलना, और सारी दुनिया भूल जाना पर हैदर मौला नहीं भूलना। मसला तो खुल के समझ आता है ना। हाथ फड़ के नबी ने आंखें हंसी, मन कुंतु मौला, भावे सारी दुनिया भूल जाना। दुनिया सहाबा और अहले बैत तो दुनिया नहीं ना, वो तो दीन है। भावे सारी दुनिया भूल जाना पर हैदर मौला नहीं भूलना। लेकिन हजरत उमर के सामने एक बीबी लाई गई, इसने जिना किया, सियासत में रवायत। हजरत फारूक आजम ने हाथ जारी कर दी, फरमाया ले जाओ इसे, संसार करो या कोड़े मारो। सहाबा लेके जा रहे हैं, मौला अली शेर खुदा आ गए। कहाँ लेके जा रहे हो? हुजूर, इस पर हजरत उमर ने हाथ लगाई है। फरमाया उमर को तुमने बताया था कि ये तो बेचारी दीवानी है, ये तो ज़हनी तौर पर कमजोर है, ये तो मजजूब है, इसे तो पता ही को नहीं, ये बताया था? हुजूर नहीं। फरमाया उमर ने पूछा था? हुजूर नहीं। फरमाया चलो वापस चलो, हक कबूल करें। हजरत मौला अली शेर खुदा वापस लाए। फरमाया उमर, फैसला करते हो, पूरी बात क्यों नहीं पूछते? आपने कहा अली क्या हुआ? फरमाया तुमने इस औरत पे हाथ लगाई? हुजूर लगाई। फरमाया तुम्हें पता है ये मजजूब है, दीवानी है, मरफूल कलम है, इस पर हद नहीं लगती। अर्ज की के हजरत उमर फारूक फरमाने लगे मुझे तो पता ही नहीं। तो आप फरमाने लगे पहले पता किया करना, फिर मामला तय किया कर। तो हजरत उमर ने कोई बहाना नहीं किया। बहाने भी होते हैं ना, इन्हें मैंने सही नहीं गल दसी, ए बंदे ने मैंने इंज किया सी, कोई बहाना नहीं लगाया। उमर नीचे उतरे और सजदे में गिर गए, या अल्लाह उमर को माफ कर, या अल्लाह उमर को माफ कर दे। और फिर चमकते हुए जुमले सैयदना फारूक आजम के फरमाने लगे, लोगों आज अगर अली ना होता तो उमर हलाक हो जाता। हजरत अली शेर खुदा इतनी शानों और मर्तबों वाले आदमी थे। एक बंदा आ गया, गैर मुस्लिम था, तो कहने लगा मेरे कुछ सवालों के जवाब हैं पर किसी ने दिए नहीं कभी। जब उसने आके बहुत बड़ा दावा किया कि अगर कोई मेरे सवाल का जवाब दे तो मैं मान जाऊं, तो फिर मुसलमानों ने कहा कि नहीं, तूने बड़ा ही दावा कर दिया, तो शाही कोई नहीं। वहां तो बड़े बड़े मान गए। हजरत मौला अली शेर खुदा के पास ले गए तो उसने बड़े बड़े मुश्किल सवाल किए। पहली बात वो कहने लगा, आप मुझे दो ऐसे दोस्त बताएं जिनमें कभी लड़ाई नहीं हुई। तो हजरत अली कहने लगे, तू तो बड़े दावे कर रहा था कि मैं बड़े लंबे सवाल पूछूंगा। वो दो दोस्त जिनमें कभी लड़ाई नहीं हुई वो जिस्म और रूह हैं भी इकट्ठे साथ रहते, दोस्त भी हैं, पर कभी आपस में लड़ाई, बड़े बड़े गुनाह करता है, जिस्म पर रूह नाराज नहीं होती। उसकी आंखें खुल गई, उसको तो कभी जवाब ही नहीं मिला था। कहने लगा, अच्छा वो दो ऐसे दोस्त फिर बताएं जिनमें कभी सुलह नहीं हुई। तो फरमाया वो मौत और हयात है। जब मौत आती है तो फिर जिंदगी बाकी, इनकी सुलह नहीं हो सकती, इकट्ठे रह ही नहीं सकते। वो कहने लगा ये तो कमाल हो गई। कहने लगा जी और पूछ लूं? फरमाया तेरा ही दावा था 2 पूछने, मैं तैयार हूं, तू 100 भी पूछ। कहने लगा वो बीबी जिसने चंद लम्हों में बच्चा पैदा कर दिया। फरमाया ये भी कोई मुश्किल बात है? वो हजरत मरियम है, 1 मिनट में हामला हुई थी, अगले मिनट में अल्लाह ताला ने उन्हें थोड़ी सी तकलीफ से गुजारा और अगले मिनट में हजरत ईसा पैदा हो गए। कहने लगा जी वो 2 चीजें जो हरकत नहीं करती। फरमाया यार जल्दी पूछ। वो 2 चीजें जो हरकत नहीं करती वो जमीन आसमान है। उसने कहा वो 2 चीजें जो ठहरती नहीं। फरमाया वो सूरज और चांद है, जो हरकत ही करते रहते। कहने लगे अच्छा वो बताएं जी, जो खा तो बड़ा कुछ किया पर पिया उसने कुछ भी नहीं। तो हजरत अली फरमाने लगे वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा है, जादूगरों के सांप सारे ही खा गया पर पानी का घूंट भी नहीं पिया। हद हो गई। वो शख्स कहते हैं अली के जवाब ने मेरे अंदर हिजान पैदा कर दिया। मैंने फौरन कहा बताएं वो शख्स जो कोई शय नहीं। तो हजरत अली कहने लगे जो मेरे नबी का कलमा ना पढ़े वो कोई शय नहीं। कहने लगे वो बताएं जो बड़ी शय हो। फरमाया जो चाहे कि उसकी इज्जत काबे से भी ज्यादा हो जाए और वो बड़ी शय बन जाए तो वो मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ जाए। काफिर कोई शय नहीं और मोमिन है बड़ी शय। उसने हाथ आगे बढ़ाया, कहने लगा फिर पढ़ाइए मुझे भी कल। हजरत अली चूंकि बड़े दाना थे, मुसल्ले पे बढ़ रहे हैं, जमात खड़ी करनी, अल्लाह अकबर कह रहे हैं, बंदों का ख्याल था नमाज लेट करानी है। ने फटाफट हजरत अली से कहा कि हुजूर जरा वो जानवर तो बताइएगा कितने हैं जो अंडे देते हैं, और जरा वो भी बताइएगा जो बच्चे देते हैं। ये जरा आप कितने को बंदा जानवर गिने, आहिस्ता आहिस्ता बंदा शुमार करे हो,
बकरी जो है वो बच्चा देती है, मुर्गी अंडा देती है, और गायें जो है वो बच्चा देती है, और बतख जो है वो अंडा देती है। बंदा तो ये गिनने लग जाए। तो हजरत अली शेर खुदा यहाँ हाथ हैं, फरमाने लगे घर जाके गिन लेना। मोटी सी बात बताता हूं, जिन जानवरों के कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं, जिनके अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं। अल्लाह अकबर। नमाज की नीयत बांध ली, तुम गिनना घर जाके। मोटी सी बात बता देता हूं, वो साहब कहते हैं मैं हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को जाने आया था, मैं खुद बड़ा उलझ गया। हजरत अली मुर्तजा की मोहब्बत ईमान है। और फिर वैसे भी हजरत अली इतने दाना हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मैं इल्म का शहर हूं तो फिर अली दरवाजा है। अली बाबे इल्म के, शहर इल्म के बाब अली है। इमाम सफूरी कहते हैं एक दिन ना हजरत जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में मौला अली के सामने आके खड़े हो गए। कौन? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। हजरत जिब्रील अमीन खड़े हुए इंसानी शक्ल में, तो कहने लगे अली ये बताइए कि जिब्रील इस वक्त कहाँ है? इंसानी शक्ल में मौला अली से पूछते हैं। तो कुछ जो आजकल हमारे शागिर्द हज़रात पढ़ जाते हैं ना, तो वो जरा जल्दी करते हैं जवाब देने में। बड़ों को जब जवाब भी देना बुजुर्गों को, तो जवाब में भी आदाब का ख्याल होना चाहिए। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब पूछा ना कि जिब्रील अमीन कहाँ है इस वक्त, तो हजरत अली ने पहले ऊपर देखा, फिर नीचे देखा, फिर दाएं देखा, फिर बाएं देखा, फिर आगे देखा, फिर पीछे देखा। जवाब फटाफट तैयार था कि आप ही तो हैं, लेकिन ऐसे जवाब नहीं दिया। फरमाने लगे जनाब ना तो इस वक्त हजरत जिब्रील मशरिक में है, ना मगरिब में है, ना शुमाल में है, ना जुनूब में है, ना 7 जमीनों में है, ना आसमानों में है। फिर भी ये नहीं कहा कि आप जिब्रील हैं। फरमाने लगे भाई जमीनों आसमानों मशारिक मगारिब में तो कोई नहीं, तो यहाँ आप जिब्रील हैं या मैं जिब्रील हूं? दोनों में से एक है। तो हजरत जिब्रील अमीन मुस्कुराए, फरमाने लगे नहीं आप तो अली हैं, जिब्रील तो मैं ही हूं। एक मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया कि हजरत अली को अपना नायब बना के मदीना मुनव्वरा में छोड़ के जाया जाए। महबूब करीम अलैहिस्सलाम जब भी तशरीफ ले जाते थे तो किसी एक को नायब बनाकर मदीना मुनव्वरा में छोड़ जाते। हजरत अब्दुल्ला इब्न मखतूम रदी अल्लाह तआला अन्हु को भी एक दफा हुजूर छोड़ के गए। तो एक जंग के मौके पर महबूब ने हजरत अली शेर खुदा से कहा कि आपको मैं अपना नायब बना के यहाँ छोड़ के जाता हूँ। तो हजरत अली को छोड़ के जाया जा रहा है, उनको मदीने में रहना है, मैदान में नहीं जाना। आम आदमी कितना पसंद करता है कि मैं आराम से रहूंगा, लेकिन हजरत अली को इतना शौक था मैदान जिहाद का, इतनी तड़प थी उनके दिल के अंदर कि अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रो पड़े। कहने लगे हुजूर सारी दुनिया मैदान में जिहाद करेगी और मैं यहाँ औरतों और बच्चों के पास रहूंगा, मैं यहाँ औरतों और बच्चों के बीच वक्त गुजारूंगा, हुजूर मुझे लेके जाएं। तो वहां भी हुजूर ने मोहब्बत की बात समझाई। फरमाया अली जब हजरत मूसा कोहे तूर पे गए थे तो अपने भाई जनाबे हारून को छोड़ गए थे, तो तुम भी तो मेरे लिए उसी तरह हो ना जिस तरह मूसा के लिए हारून थे। लेकिन फरमाया ये याद रखना मेरे बाद नबी कोई नहीं, हजरत मूसा भी नबी हैं और जनाबे हारून भी नबी हैं अलैहिमुस्सलाम, लेकिन वो उन्हें छोड़ के गए थे, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं। कि एक बात अपने ज़हन के अंदर बिठाना कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो एक शख्स था अमर बिन अब्दे वुद, 90 साल का बूढ़ा, लेकिन जब तलवार लेके मैदान में आता था तो 1000 आदमी के मुकाबले में लड़ता था। और लोग जगह जगह ये कहते थे तू तो इस तरह है जिस तरह अमर बिन अब्दे वुद लोगों को डराता है, तो उस तरह हो गया। ये उसके इर्द गिर्द के लोग उसकी मिसालें देते थे। जंगे खंदक जब हो रही थी तो ये मुकाबले में आ गया। तो हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम भी तशरीफ फरमा थे। अब पूरे अरब के अंदर इसके बारे में ये कहा जाता था कि उससे ना लड़ो, वो तो खूनखार है, वो तो दरिंदा है, वो तो जंगली शेर की तरह आता है, वो तो काट खाने को दौड़ता है, उससे कौन लड़े। ज़हन बना दिया लोगों ने कि अमर इब्ने अब्दे वुद के मुकाबले में कोई नहीं आ सकता। खंदक में ये आया, इसने ललकारा मुसलमानों को, आओ वो तुम्हारी जन्नत किधर है जिसके बारे में तुम कहते हो कि हम शहीद होंगे, तो आओ मेरे मुकाबले में निकलो। जब इसने पहली दफा ललकारा तो अभी बात खत्म नहीं हुई थी कि मौला अली तलवार लेके अल्लाहु अकबर कहते खड़े हो गए।
हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। हजरत अली फिर बैठ गए। वो फिर पुकारा, उठो कोई मेरे मुकाबले में। तो मौला अली शेर खुदा फिर खड़े हो गए, फिर खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया बैठ जा। एक शख्स ने कहा अली ये अमर बिन अब्दे वुद हैं। फरमाया मुझे पता है। नहीं समझे आप बात, मैं आपको समझा के लाया हूं पीछे से कि प्रोपेगेंडा करते हैं ना लोग, हो आगे ना जाना, यहाँ करंट बड़ा ज्यादा है, वोल्टेज बड़े सख्त हैं, तू आगे ना बढ़ना। भाई क्या हो जाएगा, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हजरत अली तीसरी दफा उसने कहा ना है कोई, तो हजरत अली फिर उठे। अब तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने थपकी दी। बाज जगह यह है कि हुजूर ने खुद तलवार थमाई, सर पे इमामा बांधा और हुजूर ने फतह याबी की दुआ फरमाई। हजरत अली घोड़े पे बैठे निकले और जब उसके सामने गए तो जाके कहने लगा मेरा पता है। हजरत अली फरमाने लगे तू अपना छोड़, मेरा पता है तुझे, मुझे तो जानता है। कहने लगा मैं 1000 के मुकाबले में अकेला लड़ता हूं। हजरत अली शेर खुदा फरमाने लगे पता नहीं तू किन से लड़ता रहा है, जाने वो कौन है जिनसे तू लड़ता रहा, वो कौन 1000 थे जो तेरे मुकाबले में आते थे, पता नहीं। तो कहने लगा मेरा नाम मेरी माँ ने अमर बिन अब्दे वुद रखा है। फरमाया छोड़ तू, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। कहने लगा तेरी उम्र छोटी है, कोई बड़ा ला। फरमाने लगे ये तो जब हंजे में पंजा मिलेगा तो पता चलेगा उम्र किसकी छोटी है। अभी तू कहानियों से मुतासर करना चाहता है, तू चाहता है कि तू प्रेशर डाले और मैं तेरी बात सुनूं, तो मुकाबले में आ, डींगे ना मार, कहानियां ना सुना, दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। तू मुकाबले में आ, तू बातें बना रहा है, कहानियां सुना रहा है। वो कहने लगा तू बच्चा है, मैं चाहता नहीं तेरा खून बहाऊं। तो हजरत अली कहने लगे मैं बड़े दिन से परेशान हूं कि किसी बेईमान का खून बहाया क्यों नहीं, मेरा बड़ा दिल कर रहा है तेरा खून बहाऊं। उसने बड़ी जोरदार ज़रब लगाई, गुस्से में इतना पागल हुआ, क्योंकि उसके बारे में मारूफ था कि वैश्य मिजाज आदमी, इतना सख्त पागल हुआ गुस्से में कि उसने अपने घोड़े के पैर काट डाले। पहले तलवार घोड़े को दे मारी, उसको काट के दौड़ा। ये क्यों करते थे लोग, अरब के लोग उस वक्त ये काम करते थे कि हमने घोड़ा ही मार डाला है ताकि हम भाग ना सके। कहते ना कश्तियां जला दी हैं कि अब वापस जाने का रास्ता ही बंद हो जाए। घोड़े के पैर काट डाले के भागना नहीं, और बड़ी जोर से उसने ज़रब लगाई हजरत अली पर। हजरत अली ने जब रोकी तो वो ढाल टूट गई हजरत मौला अली, और आपके एक इमामे को उसकी तलवार भी लगी। आपने फरमाया दिखा लिया तूने जोर, अब मेरी बारी है। हजरत मौला अली शेर खुदा का कद बज़ाहिर छोटा था। सहाबा कहते हम दूर से देख रहे थे, अल्लाहु अकबर कह के थोड़ा सा जमीन से वो उठे, थोड़ा सा उठे, और फिर दोबारा नहीं उन्हें तलवार चलानी पड़ी। एक ही ज़रब लगाई और उसके 2 टुकड़े करके उसे जमीन पे फेंक दिए। एक शख्स बड़ी दूर से आया, उसने कहा हुजूर मुझे ना लंबी बातें याद नहीं रहती, 2 बातें बस बता दे मैं अमल करूं तो जिंदगी बन जाए, 2 बातें। तो हजरत अली फरमाने लगे लंबी उम्मीदें ना लगाना, और दूसरा फरमाया अपने नफ्स की ख्वाहिश की पैरवी से बचना। दुनिया में रुसवा वो लोग हो जाते हैं जो अपने नफ्स की ख्वाहिश की पैरवी करते हैं, वो बुज़दिल हो जाते हैं जो ख्वाहिशात नफसानी के पीछे भागते हैं। ये काम ना करना। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना है। एक बीबी का खेमा था, झोंपड़ी थी, जैसे आज हॉस्पिटल बने हुए हैं, वहां बच्चे पैदा होते हैं। एक बीबी थी, वो दाई थी, काम करती थी ये वाला। उसके घर में 2 केस इकट्ठे आ गए, ना इतनी लंबी चौड़ी लाइटें होती थी। उसने अपनी झोंपड़ी में दोनों बीबियां इकट्ठी थी, दोनों को अल्लाह ताला ने औलाद दी। रात बड़ी गहरी थी, अंधेरा बड़ा सख्त था। एक के घर में बच्चा पैदा हुआ, दूसरे के घर में बच्ची पैदा हुई। अब जब सुबह का उजाला निकला तो झगड़ा शुरू हो गया। दोनों बीबियां मुतालबा करती हैं बेटा मेरा है, बेटा मेरा है। अब वो दाई भी नहीं बता सकती, अंधेरा बड़ा सख्त था, बूढ़ी औरत थी, समझ नहीं आती क्या करूं। तलवारों तक बात चली गई। लोगों ने कहा क्यों लड़ते हो जब मौला अली शेर खुदा जो मौजूद है। आना मदीना तो इल्म अली बाबूहा, नबी पाक ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है।
फरमाया जब इतना बड़ा शख्स मौजूद है तो जरूरत ही नहीं। लोग परेशान होके गए, जाके कहने लगे हुजूर एक मसला आ गया, जरा सोच कर गौर करके बताइए। अंधेरे में बच्चा पैदा हुआ, एक बीबी के यहाँ बेटा, एक के यहाँ बेटी, अब दोनों बेटी की तलबगार है, फैसला कैसे करें? तो हजरत अली ने कहा बड़े तुम परेशान आए थे, ये भी कोई बात है? दोनों बीवियों का थोड़ा थोड़ा दूध निकाल के तोलो, जिसका दूध वजनी बेटा उसी का है। कहा हजरत जी ये मसला आपने कैसे निकाला? फरमाने लगे कुरान पाक से निकाला है। कहा क्यों? फरमाने लगे अल्लाह कुरान में कहता है मैंने बेटे के 2 हिस्से रखे हुए हैं और बेटी का 1 हिस्सा रखा हुआ है। तो जब अल्लाह किसी के घर में बेटा देता है तो दूध भी वजनी होता है, इसलिए कि डबल वजन का होता है। उन्होंने दूध निकाल के तोला, मिकदार 1 जितनी, मिकदार 1 जितनी, उसका आधा किलो दूध, इसका 1 किलो, वजन किया तो पूरा हो गया। पैमाने रखे गए तो वो नापने में और था, तोलने में उसका दूध वजनी निकला। जब दूध वजनी निकला तो जनाब सैयदना अली अल मुर्तजा फरमाने लगे जिसका दूध वजनी बेटा उसी का है। पहली बात, जिंदगी में अदब बड़ा किया मौला अली शेर खुदा, बड़ा अदब किया। हजरत अली कहते हैं मैंने नबी पाक से एक सवाल पूछना था तो मैंने 14 दिन इंतजार किया। 14 दिन, कहते 14 दिन के बाद बंदा आया, वही सवाल पूछा जो मैंने पूछना था। तो कहते हैं हुजूर जवाब उसे दे रहे थे और देख मेरी तरफ रहे थे, जवाब उसे दे रहे थे और तवज्जो हुजूर की मेरी जानिब। एक उनकी जिंदगी में अदब बड़ा है। दूसरी बात यह कि गहरा इल्म है मौला अली का। हमारे यहाँ लोगों के पास इल्म होता है, इल्ला माशाअल्लाह बड़े बड़े अच्छे उलमा हैं, लेकिन बाज जगह पे इल्म बड़ा सतही सा है, सतही सा, यानी सारी जिंदगी जिस बंदे ने इल्म पढ़ा है वो गहराई तक नहीं उतरा, यानी उस पर अमल नहीं कर सका। तो अगर मेरा इल्म मुझे नफा नहीं दे रहा तो मेरा इल्म किसी को क्या नफा देगा? हजरत अली का इल्म गहरा था, सियाना इल्म था, गहराई वाली बात करते थे, बड़ी सोच समझ के फैसला करते थे और बड़े सीरत थे, दाना आदमी थे हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह। और आपका फहम व फिरासत निराला था। एक शख्स ने कहा जी मैंने तरस खा के एक औरत से शादी किया, वो बूढ़ी थी, तरस खा के निकाह किया, मैं जवान वो बूढ़ी है, पर मैं करीब जाता हूं तो मुझे पता नहीं क्या होता है। वो बड़ी जगह पे गया हूं पर मेरा मसला नहीं हल होता, हालांकि वो लवारस थी और शादी नहीं उसकी हो सकी। तो हजरत अली शेर खुदा फरमाने लगे बीबी को मेरे पास ला, औरत को ला। वो लाए तो आप फरमाए तेरा निकाह नहीं हुआ? कहने लगी नहीं। फरमाया सोच ले, चुप कर गई। फरमाया कोई गुनाह किया हो? खामोश हो गई। कहने लगी मैंने मेरा आगाज था जवानी का तो मैंने एक नाजायज बच्चा पैदा किया, उसे फेंक दिया, आबादी में फेंका। तो हजरत अली शेर खुदा फरमाने लगे ये तेरा वही बच्चा है। चूंकि जो इसने कैफियत बताई हैं वो ये है कि इंसान मां बहन जो उसकी होती है ना, कुछ भी हो जाए, अल्लाह ताला ने फितरी जज्बे रखे होते हैं, तो वो कोई हैवान हो तो बात अलग है, अगर इंसान हो तो वो मतलब इंसान मां के सीने से लग भी जाए तो उसे शफकत का रंग तो नजर आता है, लेकिन उसके अंदर वो जज्बात पैदा हो सकते नहीं। बेटी सीने से लग जाए तो वो वाले जज्बात उसमें आ। तो हजरत अली शेर खुदा का इल्म बड़ा बारीक। तो आप फरमाने लगे मियाँ वो जो तेरा इसके ऊपर तरस आया ना, उसकी भी वजह यह है कि तेरा इससे कोई अजल से रिश्ता है, लिहाजा तुम्हारा निकाह ही मुनक इतना गहरा, सियाना और पेचीदा, यानी बातों की गहराई तक। आज हमारे बहुत सारे मेरी तरह के लोग तकरीर करते हैं तो वो अवामी नफ्सियात के मुताबिक बात नहीं कर पाते, क्योंकि हम जो तकरीर रट के आए हैं वो तो हमने तो इल्म जाहिर करना है और नारा लगवाना बड़ा शौक है। जब तक वो मतलब लोगों में शौक ना पैदा हो फिर बाद में गुफ्तगू होती है आज मैं जलसा लूट लिया है। तो मैं कहा करता हूं कि जलसा लूटा नहीं जाता, जलसे में तो कुछ लुटाया जाता है, इल्म दिया जाता है, फहम दिया जाता है, शौक दिया जाता है। तो ये क्या मतलब बात हुई? तो गहरा इल्म था। चौथी बात, इल्म भी था और तकवा भी था, परहेजगारी भी थी। जब आप खलीफा थे ना, अमीरुल मोमिनीन थे, अमीरुल मोमिनीन, आप चलो सूबाई वजीर की बात नहीं करता, आप किसी ना हल्के से, जो वो हमारे पाकिस्तान में ओहदे बहुत ज्यादा हैं, तो जिसको कोई हल्का सा ना चलो पुराना वर्कर है तो कोई दे देते हैं, उसको भी मिल जाए तो 15 को वोट तो उसके भी कहीं नहीं गए मुबारकबाद के। अल्लाह से पूछें कि तेरा असल में काम क्या है तो काम कोई भी नहीं होता उसका, बोर्ड लग जाते हैं, बड़ा क्या बात है जनाब, मौज बन गई। हजरत अली अमीरुल मोमिनीन थे और कूफे के चौक में खड़े थे, कूफे के चौक में, और फरमा रहे थे कि भाई ये मेरी ज़िरा है, बड़ी कीमती है, ये कोई बंदा खरीद ले
किसी ने करीब जाके पूछा अमीरुल मोमिनीन क्यों बेच रहे हो? तो फरमाने लगे मेरी तामत पुरानी हो गई है, अब ना इतनी पुरानी हुई है कि इस पे पेबंद लगने की भी जगह कोई नहीं बची, अगर ये फटने के करीब न जाती तो मैं ज़रा ना बेचता। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मेरे अब्बा जी